So hi guys, this is going to be a bit different. आज एक अलग टाइप का सेशन रहेगा. पार्थ हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पे. Parth is a subscriber on the channel and he's very enthusiastic about the markets. He tracks the market, actively, and he's also part of my Telegram channel. तो पार्थ से मेरी मुलाकात अगेन यूट्यूब के थ्रू ही हुई है एंड वी हैव बीन इन टच. और कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट हमारा पैशन है तो हम उसको डिस्कस करते रहते हैं. So Parth would like to share some of his findings over here, and over to you, Parth. अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं. आपको जो शेयर करना है आप कर सकते हैं. Okay, sure. Uh, Thanks for the introduction, Jatin. Yeah, so let me start with Nifty. So what I am going to do is that मैं 2003 का जो बुल रन था and जो अभी रन हुआ है, I will try to compare both of them and try to analyze के what similar things we are seeing and what all things that can possibly happen. So yeah, let's start it. राइट तो ये बेसिकली अभी हमारा फोकस फिर जो करंट करेक्शन आई है कहीं ना कहीं उसके अराउंड है. Correct. Yeah. ओके परफेक्ट. Fine. So I will just look out for the weekly candles, क्योंकि that will make much more sense rather than looking into monthly or daily. Yeah, that should be it. Right. So one more thing I will do, I will add a couple of indicators over here. One would be a moving average and one would be RSI. And then we can compare in both of them, like how things are replicating. परफेक्ट. Yeah, so this is 20 EMA, which I'm going to compare it with. And yeah, we can start now. If we see, मैं एक के बाद एक, I will just try to explain the similarities. First time, okay, over here, we can see the bull run started from here and it went till this particular point, which was around 118 points in approximately, it is April 2003 to Jan 2004. So it was approximately 2 years के अंदर it made a run of 118 points, right? अप्रैल 2003 से जैन 2004 अप्रोक्सीमेटली आप मान लो 9-10 महीने. हाँ. Yes, that's right. हाँ, sorry, my bad. हाँ. So it's approximately April से it's around 9 से 10 महीने के अंदर it made a move of 119 points. Whereas if we see for recent bull run, it did a run of around 134 points in approximately 1.5 year, which is 16 March till 18 October. So approximately 1.5 year. Okay. And this is the first time जब weekly RSI जो वीकली 20 मूविंग एवरेज है इट गॉट ब्रीच. 2-3 बार ब्रीच हुआ था यहाँ पे, लेकिन इट नेवर गिव अ क्लोज वीकली क्लोजिंग बिलो इट, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम इट गिव अ क्लोजिंग, राइट? सो ओवर हियर इफ वी सी इन द बुल रन व्हिच हैपेंड, सो यहाँ पे क्या है ना कि the move was very steep. 118 points was very much steep, and after that it started giving a consolidation. It gave a bull run and then there was a very sharp fall. So over here also, and if we see at this point, RSI was जब हाई मारा था तब RSI was somewhere around 86 और हमारा यहाँ पे RSI somewhere around जो हाई मारा था it is somewhere around 80. So I feel like अभी क्या होना चाहिए कि from this top till this bottom, I'm looking at the closing, there is a movement of 25 points, and this movement is approximately in, if we see the low of this, yeah, it is approximately from Jan 2004 December, Jan 2004 से लेके जुलाई, around 6 months का ये अराउंड 6 मंथ्स yeah, में बेसिकली 25% करेक्शन आपको यहाँ पे दिख रही है.
Yes, exactly. So 25% का correction we can see over here. Right. And in the same way, I feel like कि over here अभी तक इस निफ्टी ने hardly 10% का correction, 8% का correction, week से देखे तो around 10% का correction दिया है. And Right. as our movement was very steep in this 1.5 year, जो इसने 118 किया था, हम लोग ने approximately 147% का move किया है. So Right. and we have one very strong support over here. Okay, now why I feel like this is a support? If we see this bull run, तो यहाँ पे we can see one thing कि when was the इसने actually इसने exact support यहाँ पे लिया at this point. एंड इसके नीचे नहीं गया था एंड इफ वी सी व्हाई दिस सपोर्ट इज द इम्पोर्टेंट सपोर्ट लुक एट दिस प्लेस यहाँ पे क्या हो रहा है कि दिस इज द लाइक बुल रन से पहले दिस वाज द फर्स्ट टाइम जहां पे बैक टू बैक रेड कैंडल्स बनी थी एंड द क्लोजिंग ऑफ वन वीक वाज बिलो द क्लोजिंग ऑफ प्रीवियस वीक राइट एंड यहाँ पे दिस इज ऑल्सो ओवर हियर जहां पे बैक टू बैक रेड कैंडल्स बनी है and the closing of 1 week is below the closing of the previous week. So I feel like this is a support which is 15,600 से लेके 16,000 के बीच में, where it can face a very strong support अगर इसको ये bull run को replicate करना हो तो. Also जब इस point पे आया था तब इसकी RSI की value is approximately around 35 to 40 at this point जब उसने low मारा था and Right. अभी अपनी RSI की value is already 54. सो एट अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेट करता है फॉर फ्यू अमाउंट ऑफ टाइम या फिर इफ इट इज गिविंग अ शार्प फॉल वी कैन इजीली एक्सपेक्ट RSI ऑफ 35 एट दिस पॉइंट एंड वंस यहाँ पे आता है देन वी कैन सी वन मोर थिंग विच आई नोटिस कि एक बार इसने हाई मारा उसके बाद उसको वापस वो हाई को क्रॉस करने के लिए it took approximately Jan 2004 से लेके December 2004 1 year it took to cross that particular high and same if we imply over here हम लोग ने यहाँ पे हाई मारा था अराउंड अक्टूबर में so it should definitely take at least 6 months क्योंकि हमारी लैरी इतनी स्टीप हुई है so अपना कंसोलिडेशन उतना स्टीप नहीं हो सकता so if we see around it will take 6 months to somewhere around time matlab I feel like after the financial year get closed and once the budget is also out in the market there we can see a kind of this all time high getting crossed after this financial year so yeah matlab that's the thing like you can add something Jatin if you want Right. तो मेरे को actually 16,000 का support is something that you know is a very very decisive level even for us. मतलब बहुत ही clear दिख रहा है ये 16,000 उसमें कोई बात ही नहीं है. And इससे पहले एक 16,700 के अराउंड सपोर्ट जो आ रहा है that I feel you know will hold. मतलब मेरे को नहीं लग रहा उसके नीचे जाएगा. 16,700 for me is kind of a level जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मार्केट शायद टिक जाए. अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज जो है मूविंग एवरेजेस को लेके तो आप देखोगे वहां पे जब कैंसिल आउट होनी थी पास्ट में जो हमारा 2003 वाला रन है तो जब उसे कैंसिल आउट होना था तो एक बड़ी रेड कैंडल से ही वो 20 डेज की जो ईएमए आपकी वो कैंसिल आउट हुई. उससे पहले वहां पे डोजी जरूर बनी, रिकवर हो गया वो तो लेकिन जब वो रेड वाली कैंडल आई है तभी जाके हमें कंफर्मेशन आई है कि यस यू नो दिस ईएमए हैज बीन ब्रीच्ड, यानी कि एक थोड़ा बेरिश ट्रेंड यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है. उसके अगर हम कंट्रास्ट में देखें इस समय तो अगेन वी आर सीइंग डोजीज फॉर्मिंग एट द बॉटम बट अभी हमें कंफर्मेशन नहीं आई है कि वेदर इट विल यू नो करेक्ट सिवियरली. तो कहीं ना कहीं अभी कंफर्मेशन की हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे. अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से कि जो आपको लेवल्स दिख रहे हैं दैट इज समथिंग दैट वी आर आल्सो ट्रैकिंग एंड मूविंग एवरेज के बेसिस पे जो आपको 20 ईएमए सपोर्ट दे रही है वो बहुत ही अच्छे से चल रहा है. इनफैक्ट जो आपका करंट चार्ट है उसके अंदर अगर आप देखेंगे अराउंड अप्रैल या मई के बीच में आपको डोजी पे सपोर्ट लेता हुआ भी दिखेगा वो. सो बेसिकली 20 ईएमए बिल्कुल नीचे आती है और मतलब वहीं पे डोजी बनती है एंड देन द चार्ट यू नो कंटिन्यूज ऑन. सो मुझे कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं लग रही निफ्टी के अंदर. I think it's a very very you know definitely a very big bull market but कहीं ना कहीं बहुत ही सुलझी हुई बुल मार्केट है. अब मैं सुलझी हुई क्यों कह रहा हूँ बिकॉज कई सारे स्टॉक्स के अंदर आपको करेक्शन आती हुई दिखी है
जहां पे ओवर वैल्यूएशन होनी शुरू हो गई थी, या लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी वैल्यूएशन क्यों है, या फ्रेंजी हो रही थी। यस, देयर विल बी पॉकेट्स जहां पे अभी भी आपको समझ नहीं आएगा कि क्यों वैल्यूएशन इतनी बढ़ गई है। छोटे स्टॉक्स में स्पेसिफिकली हो सकता है कि कोई स्टॉक बहुत ज्यादा चला जाए, बट इन जनरल आप देखोगे जो केमिकल सेक्टर के अंदर ओवर वैल्यूएशन हमें दिख रही थी, मार्केट को 1 1.5 2 हफ्ते लगे हैं वो पूरी ओवर वैल्यूएशन ठीक करने में। एंड हम आपके साथ भी पहले डिस्कशन सा कर ही रहे थे कि कैसे इनग्रीविया जैसे शेयर्स रिजल्ट के दिन इतनी सिवियरली करेक्ट करे, एंड दीपक नाइट्राइट में हमने एक बड़ी सिवियर करेक्शन देखी। तो कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है कि जो सेक्टोरल करेक्शन मार्केट को करनी है ना, वो मार्केट जो करे जा रही है खुद से, वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है इसकी लॉन्ग टर्म मूवमेंट और हेल्थ के लिए। सो डेफिनेटली मतलब quite a good insight, I would say, quite a different thing. मैंने बहुत बार पढ़ा है कि हिस्ट्री में नॉट रिपीट इटसेल्फ बट इट डज राइम, और यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें राइमिंग स्कीम दिख रही है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे हम देख सकते हैं अगेन कि कहाँ पे सपोर्ट लेता है, किस बेसिस पे रहता है, एंड उस बेसिस पे हम काम कर सकते हैं। एंड यूजिंग आरएसआई इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, बिकॉज आरएसआई मैं पर्सनली कभी भी नहीं लगा के देखता, ना लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे, शॉर्टर टर्म पे यस कभी कभी अगर डाइवर्जेंसेस देखनी होती हैं, बट दिस डेफिनेटली लुक्स गुड। एंड कहीं ना कहीं जो करेक्शन आ रही है आपकी, मतलब ये आई थिंक पहली करेक्शन है इस मार्केट की जब से ये मार्च 2020 से चलना स्टार्ट हुआ है। सो फर्स्ट टाइम इसमें हमें डेली चार्ट पे भी लोअर टॉप बनते हुए दिखे हैं। सो डेफिनेटली इस पे ध्यान देना जरूरी है। एंड पार्थ, आप मुझे थोड़ा और ऐड करके अगर बताना चाहें कि आपको कोई और लेवल इसके अंदर अच्छा लग रहा है या कुछ और आप सोच रहे हैं, तो आप मुझे जरूर बता सकते हैं। राइट ओके एक स्मॉल साइकोलॉजिक थिंग विच मुझे लग रहा है जो यहाँ पे हो सकता है इज समथिंग लाइक एज वी नो दिस इज दिसंबर, और दिसंबर में एक दो वीक लाइक वी नो एफआईआईज आर कॉन्स्टेंटली सेलिंग, लाइक उन्होंने मोर देन 70,000 करोड़ की सेलिंग की है लास्ट 2 मंथ्स में। राइट। So now I think this will stop. Why? Because holiday period आ रहा है उन लोग का. So for 2 weeks of December they are going to give a halt. And we know that DIIs are supposed to buy, and I shouldn't say suppose, they are forced to buy. क्यों? क्योंकि इतनी सारी SIPs हो रही है, this many people are into the market. So I feel like ये जो retracement हुई है, I think यहाँ पे थोड़ी सी retracement होनी चाहिए. आई डोंट नो कितनी सस्टेन करेगी ये, बट आई फील लाइक ये थोड़ी रिट्रेसमेंट होने के बाद जब जनवरी में एफआईआईज आएंगे, देन वी कैन सी द एक्चुअल ट्रेंड। मे बी एफआईआईज विल स्टार्ट बाइंग और ये ऑल टाइम हाई वापस क्रॉस कर ले, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो वापस आके सेल करना शुरू कर ले जब उन लोग को और ज्यादा अच्छी प्राइस में सेल करने के लिए मिल रहा है। And this is one thing which I will note, all the heavyweights of Nifty like HDFC Bank, Reliance, Axis, IndusInd, ये सारे के सारे FIIs heavy stocks हैं. Like they are invested a lot in this, so they are easily moving this uh, Nifty by just holding that stocks. So that is one thing that I also think that can happen. A small pullback can come near to this last swing low, and then we can see a kind of a fall, or maybe it will start again with the all-time high crossing before the financial year ends. राइट, तो चलो इसको भी देखते हैं, विल कीप इट इनटू कंसिडरेशन। डेफिनेटली 2 3 हफ्ते में ही क्लियर हो जाएगा कि वो प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है नहीं दिख रहा। एंड दिस इज हाउ बेसिकली वी लर्न, मतलब नई नई चीजें अगर हम ट्राई ही नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा वो क्या कर रहा है। एंड मे बी दिस कैन डेफिनेटली हैपन, क्योंकि पर्सनली मुझे नहीं लगता कि मैंने आई थिंक कुछ टाइम पहले कहा भी था कि मुझे नहीं लगता कि आई थिंक यूट्यूब पे बोला था कि 10% करेक्शन भी देगा मार्केट अपने टॉप से। अब तक तो उसने नहीं दिया, आई थिंक 9.5 के राउंड पे रुका हुआ है। सो लेट अस सी कि मतलब वो कहां तक जाता है, बिकॉज 10% भी इसका पूरा नहीं हुआ है। 16,700 तक भी आई थिंक 10% नहीं आता 18,000 का, अगर निफ्टी आप कंसिडर करें तो। वो मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहीं तक कहीं इसको रुक जाना चाहिए। एंड इसकी जो क्लोजिंग रही है वो नॉर्मली ऊपर ही रही है अभी। सो दिस इज वन थिंग दैट आई एम स्टिल मेंटेनिंग। मुझे लग रहा है यहीं पे साइडवेज हो जाएगा तो इसके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज एक बहुत ही झटके से प्राइस वाइज करेक्शन तो इसने दे दी काफी जगहों पे। एंड ये तो देखो ना, निफ्टी कम गिरा है, मतलब इंडिविजुअली स्टॉक्स तो हैव कंप्लीटली कोलैप्स्ड, अ लॉट ऑफ स्टॉक्स हैव डेफिनेटली टेकन अ बिग हिट।
Right. More than 30-40% move we are seeing in Sequence Scientific or Deepak Nitrite, and Navin Fluorine also had a very sharp fall. Like all the chemical stocks which were very हाँ, high, केमिकल एंड highly. फार्मा बिजनेसेस सब में ही करेक्शन Yes, काफी सिवियर रही है. इवन इन आई correct. वुड से वन ऑफ माय बिगेस्ट होल्डिंग इंडिया मार्ट 10,000 पे अभी वापस गया था ऑलमोस्ट, एंड इट केम बैक टू 7,000. तो वो करेक्शन डेफिनेटली उनमें चल रही है. तो लेट अस सी, लेट अस ऑब्जर्व कि कैसा रहता है, क्या होता है फाइनली अल्टीमेटली. तो ये तो मार्केट ही बताएगी, बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, वी कैन कंटिन्यूअसली ट्रैक द मार्केट्स, एंड रोज रोज देख के परेशान मत हो, बट जो हो रहा है उसके बेसिस पे काम करते रहो, वही वाली बात है. Right. I completely agree on that. राइट पार्थ. सो डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग एक्स्ट्रा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने टाइम निकाला और आप इस डिस्कशन का पार्ट बने, एंड यूर शेयरिंग योर इनसाइट्स विद द कम्युनिटी ओवर हियर. तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड अगर आपको और कुछ कहना है, आप कुछ और बताना चाहते हैं, आप कुछ मुझसे अलग से कहना चाहते हैं यहाँ पे, या कम्युनिटी के लिए कुछ कहना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ पे कह सकते हैं. Sure. So, एक छोटा सा point निफ्टी में कि RSI is still overvalued, which is around 72. So let's wait for it to cool down for a better journey upwards in this bull run. So either a sideways move or, as you told, or maybe a downfall. Both of them are possible, but we need RSI below in monthly levels. Oh, it came over here around 50. So we can expect around 65 also is more than enough for it to cool down. So that's what I feel in terms of Nifty. And yeah, first off, आपको तो मुझे I really want to appreciate you. I told you previously also in that in our monthly meeting that you are helping a lot, and the psychology which I am building with all of those things, it really helped me in the way how to stay out of market when it is not needed and how to stay in the market when it is required. So yeah, this uh, channel that you have started on is really good, and the insights that it's not like जो charts मिल रहे हैं something, it's the way you think and way how expert thinks about the market, about the levels, and what psychology we need to implant in ourselves is something I really appreciate you for. चलो, थैंक यू सो मच पार्थ. दोज आर वेरी काइंड वर्ड्स. आपने मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर दी. राइट. एंड डेफिनेटली एफर्ट सारे इसीलिए डाले जाते हैं कि मैं अपनी इनसाइट्स या नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकूं, एंड आई एम ग्लैड दैट यू आर बिल्डिंग ऑन इट. मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ जतिन ने बोल दिया तो ठीक है. आई एम ऑल्सो लर्निंग समथिंग न्यू. RSI मंथली पे तो मेरा लिटरली ध्यान नहीं गया चेक करने का, एंड मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि इंडेक्स आपका ज्यादा टाइम तक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड नहीं रह सकता. एंड इफ द RSI इज अबव 70 राइट नाउ एंड इट्स इन द ओवरबॉट रेंज, अगर चाहे वो मंथली ही निफ्टी के ऊपर क्यों ना हो, तो हमें ध्यान डेफिनेटली देना है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट भी आ जाती है ना, तो RSI कूल डाउन हो जाएगा. सो दैट इज व्हाट आई एम बेटिंग ऑन. बट डेफिनेटली आई मीन दिस थिंग जो अभी आपने लास्ट में जाते हुए मैं कहूंगा एक इट्स चेरी ऑन द केक, वो वाली बात हो गई है यहाँ पे. सो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा एक कोई छोटी सी चीज अगर कोई पिक करना चाहे, तो checking RSI on the monthly chart is something that even I do not do actively. And यहाँ पे लेकिन बहुत ही क्लियर बता रहा है कि यहाँ पे कूल डाउन होना इसको बहुत ज्यादा जरूरी है, because it can't stay overbought for long. Right. Just to add one small thing more, if you see any of the stock, like if you see Deepak Nitrite, or check any of the stock which went to overbought, they had to come down to cool off. Like यहाँ पे RSI overbought हो गया, then it Right. again started, it had a fall. If you see IRCTC जो बहुत ज्यादा boom कर रहा था, Right. it again had a fall just because RSI overbought हो गया. RSI between 80 to 90 is really a danger zone. You should not exit the entire quantity, but start booking profit, because if not, it will have a like it is mean reversion, तो उसको नीचे आना ही पड़ेगा at the one राइट. point. एंड मंथली पे आप देखो ना, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उसको कुछ मंथ्स लगेंगे RSI को ठीक होने के लिए, बिकॉज अब तो ये 14 मंथ्स का डेटा ले रहा है ना RSI की. अगर आपकी 14 की सेटिंग है तो 14 मंथ्स का डेटा ले रहा है यहाँ पे टाइम पीरियड के हिसाब से. सो इट विल टेक सम टाइम टू कूल ऑफ. तो डेफिनेटली यहाँ पे ध्यान देना चाहिए. अगर सिवियर ओवर बाइंग चल रही है या ओवर सेलिंग पे तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि बुल मार्केट है. अगर कोई चीज को मार्केट बेच रही है तो आई वुड सजेस्ट कि उससे दूर रहें. बट यस, अगर कुछ ज्यादा ही सिवियरली ओवरबॉट चल रहा है और वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हो रही है,
डेफिनेटली आप RSI को देख के एक बार केयरफुल हो सकते हैं, आप अपने लेवल्स लगा सकते हैं, आप कुछ चीजें समझ सकते हैं. Yes, बट अगेन RSI कैन रिमेन ओवरबॉट इन स्टॉक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अकॉर्डिंग टू मी. इंडेक्स में यस उसको right. कूल डाउन होना थोड़ा जरूरी होता है, बिकॉज इंडेक्स इज मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ स्टॉक्स. तो लेकिन स्टॉक तो एक इंडिविजुअल है, हो सकता है चले जाए, सर्किट ही मारे जाए, तो कौन रोकेगा. तो डिक्सन में आप जैसे देख सकते हो, यस इट हैज Yes, गिवन अप गेन्स, बट फिर भी RSI ओवरबॉट है, और RSI भी बढ़नी स्टार्ट हो गई है वापस हल्की, एंड स्टॉक correct, अपना चले ही जा रहा है, तो उसको तो पता ही नहीं है कि इसको नीचे भी आना है कभी. correct, correct. Right. Right, Parth. So thank you so much. I think I'll stop the recording now, and Sure. hopefully, YouTube पे जाएगा तो काफी लोगों की help होगी. So again, thank you so much from my end, from the community's end, and definitely looking forward to having another session with you on the channel. Sure. I mean, I'm looking forward to it. Perfect. चलो मैं अब recording stop कर रहा हूँ, and then we can continue our own discussion. Yeah.